स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, मिखाइल स्वेट, रशियन, 1872 to 1919 बॉटनिस्ट। इन्होंने 1906 में क्रोमेटोग्राफी की खोज की थी। ओके, इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? पढ़ो बेटा, क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसकी? 12 Nobel Prizes were awarded between 1937 and 1972 alone for work in which chromatography played a vital role. Chromatography played a vital role. किन डिसिप्लिन्स में दिया जाता है बेटा नोबेल प्राइज? वन इज फिजिक्स, वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। बॉटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। Chromatography is a technique used to separate and identify components of a mixture. Works by allowing the molecules present in mixture to distribute themselves between a stationary and a mobile medium. I hope everyone has that preliminary figure in their mind कि वो एक कागज का टुकड़ा है, उस पे रन हो रहा है, उसे हमने पानी में डुबो रखा है। Everyone has that preliminary figure in their mind. Even I'll tell you one more very interesting experiment that is also based on somewhat the principle is based on chromatography only. बेटा सफेद फूल नहीं है आपने कभी सफेद फूल? Have you ever dipped them in colored water when you were child? ओवरनाइट रखते थे दिन रात में, तो सुबह वो कैसे हो जाते थे? गुलाबी हो जाते थे, लाल हो जाते थे। That is also based on chromatography. So the thing that is moving, that is a mobile phase beta. That can be water or any inorganic solvent. जो चीज़ हमको चाहिए होती है बेटा वो कभी नहीं मिलती, और जिसको आदमी छोड़ना चाहता है वो भाग के आता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे हम। Classification of chromatography beta according to mobile phase. According to mobile phase. Mobile phase. What will be the mobile phase here? The liquid which we are using here. Number one is liquid chromatography. Mobile phase is a liquid. Now this liquid can be anything: organic solvent, inorganic solvent, mixture, or even water also. इसके टाइप्स कितने होता है? LLC, liquid liquid chromatography, liquid solid chromatography. सेकंड पढ़ो बेटा क्या है? गैस chromatography. Mobile phase is a gas. गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपने शायद नहीं, अब हटा दिया होगा उस सिलेबस से। इन आवर टाइम देयर वर फ्यू एग्जांपल्स, अब रिसेंटली शायद दे हैव रिमूव्ड, लाइक सेपरेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ, जिसे होता है ना CO2 एंड अमोनिया इन वाटर, सो दैट इज यूज्ड टू बी ऑन दैट प्रिंसिपल। Classification according to packing of stationary phase. According to packing of stationary phase. What is the stationary phase? बेटा जिसपे chromatography run हो रही है, on which chromatography is being run. That is the stationary phase. Now how it is packed? उसके हिसाब से कितने होते हैं बेटा? These three are important. नाम याद रखें, setup याद रखें. Just remember that how they look. That's it. बहुत कम चांस है that we'll put even in them in spotting also. Okay, the only clinical application which is relevant at your level is that HbA1c1 which I have told you, and I'll explain further also. So according to stationary phases, number one, thin layer chromatography. कौन सी? TLC. The stationary phase is a thin layer supported on glass, plastic or aluminium plates. Remember, what is the stationary phase in TLC? Glass, plastic or aluminum. जैसे ये है, like this is my phone, screen है इसकी, तो this can also be used as a stationary phase. इसमें हम chromatography run करेंगे तो हो जाएगा, because it is also glass, kind of glass and plastic, proper setup के साथ. Then the second one is paper chromatography. Second one is
As the name suggests, what would be the stationary phase here? Second one, paper chromatography. Second one is paper chromatography. बेटा इसमें क्या होता है? The stationary phase is paper. The most common one is the filter paper. Third one, column chromatography. The stationary phase is packed in a glass column. You have seen a glass column like a burette. उसमें stationary phase packed होता है. Then classification according to force of separation. Separation does not take place in air, बेटा, अपने आप. It is guided by certain forces. Number one, adsorption chromatography, partition chromatography, ion exchange chromatography, then gel filtration chromatography and affinity chromatography, based on forces of separation. If you can remember any one of them, well and good. कोई एक याद कर लीजिए, दो हो जाए तो और भी अच्छा है. और एक बात आपको और बताएं, दिस इज नॉट द आइडियल वेदर टू परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी. गर्मियों में कराई जाती है क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि जब सेपरेशन के लिए आप एसिटिक एसिड डालता है ना बेटा इस टेम्परेचर पे, तो एसिटिक एसिड जम जाता है, तो वो रन नहीं होता. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, नंबर वन. फर्स्ट वन इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. What is the support media used here? Alumina, glass plate or plastics. Is a method for identifying substances and testing the purity of compounds. TLC is a useful technique because it is relatively quick and requires small quantities of material. यानी कि जब सैंपल कम हो और रिजल्ट जल्दी चाहिए, you can perform TLC. Separation involves distributing a mixture of two or more substances between a stationary phase and a mobile phase. The stationary phase, what is the stationary phase here? Thin layer of adsorbent. Adsorbent. Remember, nothing is absorbed in biochemistry, okay? It is only adsorbed. Be it gel electrophoresis, phage or chromatography. It is silica gel alumina coated on a plate. Then the second one is the mobile phase. It is a developing liquid which travels up the stationary phase carrying the sample with it. Components of the sample will separate. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? TLC, thin layer chromatography. क्या पढ़ रहे हैं? Thin layer chromatography. Components of the sample will separate on stationary phase according to how much they adsorb on stationary phase versus how much they dissolve in the mobile phase. सबसे पहले देखिए बेटा सेटअप लगता कैसे है. फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. आप इसको कहीं से भी ऐसे हैंडल नहीं करेंगे. यू विल नॉट हैंडल लाइक दिस. यू ड्रॉ मार्जिन्स, नंबर वन, ऑन बोथ द एंड्स. ओके, इज इट विजिबल? ठीक है. बियॉन्ड दीज मार्जिन्स इज योर ऑपरेशनल एरिया. यहां पे आप जहां भी टच कर ले, इसके अंदर टच नहीं करना बेटा. आपको दिख रहा है? नाउ अ सर्टेन पार्ट ऑफ दिस स्टेशनरी फेज, किसका? स्टेशनरी फेज is dipped in the developing liquid. Is dipped in the developing liquid. Let us say this much. Okay, this much is dipped in the developing liquid or the mobile phase. Now 1 centimeter above this level, 1 centimeter, we'll draw another line. Is it visible? 1 centimeter above this. This is the line where sample is applied. Your mixture is applied for separation. Understood? क्यों इसके ऊपर लगाते हैं बेटा? यहां पे सैंपल लगा दोगे तो बेटा सैंपल सेपरेट नहीं होगा, ऐसे में मिक्स हो जाएगा. ओके, जैसे जैसे ये एडजॉर्ब होगा बेटा, डेवलपिंग लिक्विड फिल्म में ऊपर जाएगा, वैसे वैसे जो यहाँ पे आपका कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ ऊपर जाएंगे and they get separated according to the affinity. Now, what are the forces of separation? Number one is according to how much they adsorb on the stationary phase. Let us suppose हमने यहाँ पे ग्लाइसिन और एलेनिन का मिक्सचर लगाया. ओके, हमें सेपरेट करना है उन्हें.
तो बेटा ग्लाइसिन कुछ हद तक एड्सॉर्ब होगा, एलेनिन किसी अलग डिग्री तक एड्सॉर्ब होगा. तो दैट इज नंबर वन फैक्टर. देन सेकेंड वन इज how much they adsorb on stationary phase versus how much they dissolve in the mobile phase. हमने इसे इसमें डिप कर रखा है बेटा, धीरे धीरे ये लिक्विड ऊपर आएगा. ओके सेना, डिस्टर्ब मत करो, सोना है सो जाओ, आप भी सोना है सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. दिस डेवलपिंग लिक्विड विल कम, ऊपर आएगा, ठीक है, जैसे जैसे एड्सॉर्ब होगा. तो एक टाइम आएगा बेटा कि ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों के कांटेक्ट में आएगा. ओके, ग्लाइसिन की सॉल्युबिलिटी हो सकता है अलग हो, एलेनिन की अलग हो. तो जो जितना ज्यादा या कम डिसॉल्व होगा इस लिक्विड में, और साथ साथ में उसकी एब्जॉर्बेंट भी एब्जॉर्प्टिव पावर भी अलग है, उतना उतना वो ट्रेवल करते चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दैट. इसका बेसिक सिंपल फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको भी दिखाते हैं. वेरी वेरी सिंपल सेटअप. फोटो खींच लो बेटा. दिस इज अ सेटअप फॉर TLC. दिस इज ओनली अ रफ सेटअप. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. This is how the developed plate looks like. इसकी फोटो क्लिक कर लो बेटा. This is called a chromatogram. This thing is called a chromatogram. Preparing a chamber. देख लीजिए, एक आध पॉइंट याद रह जाए तो वेल एंड गुड. टू अ जार विद टाइट फिटिंग लिड एडेड enough of the appropriate developing liquid so that it is 0.5 to 1 centimeter deep in the bottom of the jar. आपको इतना लिक्विड डालना है चेंबर में कि 0.5 से 1 सेंटीमीटर it is touching the stationary phase. और योर सिलिका जेल, ग्लास जेल, जो भी आपने लिया TLC के लिए, एल्यूमिना प्लेट, ओके, उसके कांटेक्ट में रहे. Close the jar tightly and let it stand for about 30 minutes so that the atmosphere in the jar becomes saturated with the solvent. After that, preparing the plates for development with a pencil as two small, ये वही है, the boundaries. ऐसा है ना, आप यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे थोड़ी रखेंगे, ये तो आपका रनिंग एरिया रहेगा. This is your running area. You have to use the boundaries carefully, okay? ऐसे. This is just that only. Now, अभी तक आपने क्या देखा बेटा? आपने यहाँ पे इस लाइन पे मिक्सचर अप्लाई किया, ओके? You applied a mixture over here. Let us say our mixture contains 3 amino acids. ग्लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन. कौन कौन से? ग्लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन. अब नेचुरली तो सेपरेट नहीं हो सकते, पर हमें सेपरेट करने हैं, तो मिक्सचर को हमने यहाँ पे इस लाइन पे ऑन द सैंपल एप्लीकेशन लाइन वी जस्ट अप्लाई इट. द एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल शो यू. अप्लाई कर दिया, ओके. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, this developing liquid will rise due to capillary action and adsorptive property of the material, okay. Along with it all the 3 amino acids will be taken with it. कहाँ तक जाता है वो हमें नहीं पता, वो बाद में देखेंगे. After the whole process is run, the chromatogram, do you know how it looks like? कि ये लिक्विड बेटा यहाँ तक आ जाता है, बस एक आपको एक फेंट सा मार्क दिखता है कि यहाँ तक आपका रन हो गया. इसके अलावा बेटा कुछ नहीं दिखता. ग्लाइसिन कहाँ है, आर्जिनिन कहाँ है, या हिस्टिडीन कहाँ है, कुछ नहीं दिखता. तो आप कहेंगे सर फिर आइडेंटिफाई कैसे करें? सो टू आइडेंटिफाई दैट वी अप्लाई विजुअलाइजिंग एजेंट्स, ओके. लाइक इन जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस देयर वाज अ विजुअलाइजिंग एजेंट कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड. व्हिच वन? इथिडियम ब्रोमाइड.
जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में भी हमें कहाँ दिखता था, कौन सा सैंपल कहाँ तक पहुंच गया, कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ तक पहुंच गया। जब इथिडियम ब्रोमाइड डालते थे तब पता चलता था कि कौन सा कहाँ तक गया है। सिमिलरली फॉर दैट बेटा, कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ तक पहुंचा है, उसके लिए वी यूज डिफरेंट विजुअलाइजिंग एजेंट्स। For amino acid, it is called ninhydrin. It is ninhydrin. अगर हम शुगर सेपरेट कर रहे हैं बेटा तो एनालीन फैलेट, then alkaloids, Dragendorf reagent, and cardiac glycosides, antimony trichloride. The important one is this beta, ninhydrin. For amino acid visualization we use ninhydrin. बेटा ninhydrin स्प्रे करने के बाद ना ऐसा आता, these are the amino acid spots, these are also amino acid spots. The yellow one are usually those which have imidazole ring in them. जिन amino acids में imidazole ring होती है ना बेटा, उनमें येलो आता जब ninhydrin स्प्रे करते हैं। हम तो इसी की तो तैयारी करके बैठे थे कि अगर स्पॉट नहीं आएगा ना, ऐसे से खुद ही लगा लेंगे स्प्रिंकल करके। मरता क्या नहीं करता भाई, डिग्री चाहिए, साफ सीधी बात। नाउ इंटरप्रेटिंग द डेटा, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट बिलीव मी इट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग यू विल स्टडी। सबसे इजी चीज होती है। अब आपने ninhydrin डाल दिया ना बेटा, स्प्रे कर दिया, तो उसके बाद सूखने के बाद हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स थे बेटा? 3, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, 3 थे। ओके, तो हमें यहाँ पे कितने स्पॉट विजुअलाइज होने चाहिए? 3, क्योंकि ग्लाइसिन एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आर्जिनिन एक अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हिस्टिडीन अलग, तो 3 स्पॉट लगा लेते हैं। Let us suppose this mobile phase mark ना, ये मोबाइल फेज कहां तक गया है? This मोबाइल फेज, ये वाला है ना डेवलपिंग लिक्विड बेटा, let us suppose it 10 सेंटीमीटर तक राइज कर गया। कहां तक? This whole distance is 10 सेंटीमीटर, यहां से इस लाइन से लेकर यहां तक it is 10 सेंटीमीटर। I can say there are 3 spots. I can see 3 spots upon ninhydrin application. First spot is at 3 सेंटीमीटर, कितने पे? Next spot is at 6 centimeter and the last one is at 9 centimeter. अब ये तीनों मुझे पता करने हैं, तो कैसे पता करेंगे? By calculating their RF value. By calculating their RF value. Why we calculate RF value? Because each and every amino acid has a specific RF value. जैसे एक अमाइनो एसिड की एक स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ना बेटा, एक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होती है, क्रोमेटोग्राफी में उसके एक स्पेसिफिक आरएफ वैल्यू भी होती है। नाउ हाउ दिस आरएफ वैल्यू इज कैलकुलेटेड? दिस होल डिस्टेंस, दिस मोबाइल फेज हैज ट्रेवल्ड अप टू 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। मुझे इस पॉइंट की अगर आरएफ वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? इसका कितना डिस्टेंस है यहाँ से? 3 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी आरएफ वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो कितनी आ गई? 0.3। सिमिलरली इस स्पॉट की कितनी होगी बेटा जो 6 सेंटीमीटर पे? 0.6। और इसके कितनी होगी बेटा? 0.9। अब हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट ऑलरेडी रेडी होता है, वो प्रोवाइडेड होता है। तो लेट अस से कि ग्लाइसिन की आरएफ वैल्यू मुझे पता है 0.32 है चार्ट में, और मेरे पास एक स्पॉट 0.3 के आसपास आ रहा है आरएफ वैल्यू का, सो दिस वन वुड बी ग्लाइसिन। अब देखो एक स्पॉट मुझे मिल रहा है जिसकी आरएफ वैल्यू आ रही है 0.6 एंड आई कैन सी इन द चार्ट दैट हिस्टिडीन हैज अ आरएफ वैल्यू ऑफ 0.58 या 59, सो दिस स्पॉट मस्ट बी हिस्टिडीन। तो लास्ट वाला कौन सा हुआ बेटा? आर्जिनिन। चाहो तो आप आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। जब पता है मिक्सचर में 3 हैं, 2 आइडेंटिफाई हो गए, तो तीसरा तो वही होगा। ओके, तो बेटा ऐसे पहले विजुअलाइज करते हैं हम ninhydrin डाल के। जब हमें 3, 4, 5, 10 जितने भी स्पॉट होता है वो मिल गए,
उसके बाद हम उनकी RF वैल्यू निकाल के उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं. दिस इज हाउ सेपरेशन टेक्स प्लेस. एनी क्वेरीज? इतना भी समझ आ गया ना बेटा? इट इज मोर देन इनफ. खींच लो फोटो बेटा, इसकी फॉर्मूला है. RF value often depend on temperature and the solvent used in the TLC experiment. Important. RF value depends on temperature. जैसे मैंने बताया ना बेटा, अभी क्रोमेटोग्राफी नहीं हो सकती. This is not the weather to perform chromatography. ठीक है, क्योंकि RF वैल्यू बेटा डिफरेंट आती है, चेंज आती है. सिमिलरली सॉल्वेंट यूज्ड इन द TLC एक्सपेरिमेंट, जो भी आपका डेवलपिंग लिक्विड है, अगर आप मान लीजिए नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेक्सेन और ब्यूटेन, इनका मिक्सचर ले रहे हैं, ब्यूटेनॉल, नॉर्मल हेक्सेन एंड ब्यूटेनॉल, इनका मिक्सचर ले रहे हैं, तो बेटा RF वैल्यू का सेट अलग होगा सबका. अगर मान लो आप बेंजीन अल्कोहल ले रहे हैं तो उनका अलग होगा. तो चार्ट ऑलरेडी रेडी रहता है कि आप जो मिक्सचर यूज करते हैं ना बेटा, उसके हिसाब से सबकी RF वैल्यूज आर प्री डिटरमाइंड. ओके. इन एडिशन द प्योरिटी ऑफ सैंपल में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम क्रोमेटोग्राम. कैसे प्योरिटी ऑफ सैंपल कैसे एस्टिमेट करेंगे आप? हाउ द प्योरिटी इज एस्टिमेटेड? लेट अस सपोज किसी को he is suffering from some XYZ disease and he has to be supplemented with a pure sample of glycine. ऐसे तो बिल्कुल ये बेकार की बात है, ग्लाइसिन तो बॉडी खुद ही बना लेते हैं, पर चलो मान लेते हैं. He has to be supplemented with pure glycine sample. तो बेटा अगर आप उस सैंपल की क्रोमेटोग्राफी रन करेंगे तो आपको ग्लाइसिन की RF वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ही एक स्पॉट मिलना चाहिए, तब तो वो सैंपल प्योर है. then that sample is pure. If you get multiple spot, 2-3 spots, then that means there is some additive or adulteration in that. So this is how purification is done. Okay. Summary. चलो मैं यहीं कैपिचुलेट कर देता हूँ सर. First of all we have TLC की just a quick summary. First of all we have to take the stationary phase. Mark the boundaries on this. Okay. Mark the boundaries on this. Then we have to dip this much in the mobile phase or the developing liquid. That 1 centimeter line above where sample is applied. Where sample is applied. It can be mixture of any amino acids, sugars or anything, cardiac glycoside or alkaloids, anything. Alkaloids कहाँ हो सकते हैं बेटा? सोचो. Those who are drug abusers. Okay. Sample is applied here. Then this setup is dipped and it is left for at least 30-35 minutes, 40 minutes, ideally 1 hour. After that, this liquid runs up to this area. Okay. Then to visualize, we spray ninhydrin on it for visualizing the amino acid spots. Let us say we are doing amino acids. Then after that we calculate their RF values. We calculate their RF values. और उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है सैंपल में. एंड दिस इज हाउ सेपरेशन टेक्स प्लेस. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ समरी ऑफ TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. सिंपल है. किसी को ज़्यादा नहीं समझ आया तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. कहीं से PG करेंगे तब समझ लेना, वो अच्छे से और अच्छे से समझाएंगे पूरा चेम्बर देके. Second one, paper chromatography. Second one is paper chromatography. What would be the stationary phase here? Workman's filter paper or the chromatograph or the chromatogram paper. एक स्पेशल शीट भी आती है अलग से बेटा, 2 तरह के होता है, तो दोनों यूज कर सकते हैं. A method of partition chromatography. Remember, paper chromatography, TLC and column chromatography. These are examples of partition chromatography. Partition chromatography using filter paper strips as carrier or inert support. Carrier or inert support. It should be inert. Okay? क्योंकि अगर वही आपस में react कर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? Like in gel electrophoresis, I told you na, the gel should be inert. With respect to DNA, RNA, sugars, whatever we are separating, it should be inert. The factor governing separation of mixture of solutes on filter paper is the partition between 2 immiscible phases. आसान भाषा में कहें तो बेटा पेपर पानी में मिक्स थोड़ी हो जाएगा या किसी डेवलपिंग लिक्विड में मिक्स थोड़ी हो जाएगा. So there will always be a partition coefficient there.
इसी वजह से सेपरेशन होगा। वन इज यूजुअली वाटर एट हाँ, किसी को डाउट था? घुलता नहीं है बेटा, इट इज नॉट डिसॉल्व्ड। One is usually water adsorbed on cellulose fiber in paper, the stationary phase, and the second is the organic solvent flows past the sample on paper. समझ आया? क्या समझ आया बेटा? TLC में तो क्या था? This was called a developing liquid. This was called developing liquid. But in paper chromatography, we manually prepare it, the developing liquid. Usually, we use ammonia, butanol, normal, hexane. This is not hard and fast anything. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. प्लस वाटर. अब इनमें प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, कुछ दो आपस में मिक्स करते हैं और कुछ दो आपस में मिक्स नहीं करते. ठीक है. अब क्या होगा बेटा, जो पानी हमारा जो मीडियम है यहाँ पे वो सेल्यूलोज पे एड्सॉर्ब होगा. And the remaining three will also get adsorbed differently. Their adsorption would be different, and they will carry this. क्या है ये? Our sample with them to different distances. जैसे मैंने बताया था ना कि डेवलपिंग लिक्विड या इस लिक्विड में हो सकता है ग्लाइसिन की सॉल्युबिलिटी अलग हो, एलेनिन की अलग हो, अर्जिनिन की अलग हो, मैथोनिन की अलग हो. खींच लो फोटो बेटा इसकी. Partition occurs between mobile phase and stationary aqueous phase bounded by cellulose. The isolation depends on partition coefficient of the solute. Explanation of this is beyond the scope of this class. Okay, you can write down this formula. Why? Because we do not have the apparatus right now. Neither the filter paper, neither the developing liquid, and neither the chromatography jar और chamber. जब तक बेटा वो चलता हुआ दिखता नहीं है ना, तब तक मज़ा नहीं आता. जैसे 2 बजे आप लोगों की क्लास होती है, अगर मान लीजिए मेरा डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉपर होता तो मुझे सुबह 9 बजे आकर उसे प्रिपेयर करना पड़ता ताकि वो क्लास के दौरान सूख जाता. ओके. फिर उसके बाद जब आप लोग 4 बजे के आसपास कहीं जा रहे होते, उस पर निनहाइड्रिन स्प्रे करके हम उसे विजुअलाइज करते और फिर आपसे कैलकुलेट करवाते, तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होता. बट बिलीव मी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आगे मार्च अप्रैल में अगर हमारे पास टाइम रहा रिवीजन का तो करेंगे. जनरल प्रोसीजर: चॉइस ऑफ पेपर एंड सॉल्वेंट टू बी यूज्ड, डिसॉल्टिंग ऑफ सैंपल, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, equilibration of paper, development, detection and identification of substances. This is the general process of paper chromatography, in short PC. I request everyone to write it down. इसमें से 2-3 steps याद कर लीजिए किसी भी order में, more than enough. At the end of this class, the purpose should be that you know chromatography. कि अगर आपको कोई रोक के पूछ ले कि बेटा क्या होती है क्रोमेटोग्राफी, तो आप बता दें, सेटअप आइडेंटिफाई कर लें. और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वो 3 बता दें, TLC, PC और जो CC जो भी वो आगे होगी, उनका ब्रीफ एक लाइन की डेफिनेशन दे देंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ. along with one practical application, which is the estimation of HbA1c. Okay, this is more than enough. इतना लंबा पीपीटी तो इसलिए बस दिखा रहे हैं आपको क्योंकि यू शुड नो कि आप देखे हैं ये चीज़. ठीक है, एक बार नज़र के सामने से निकल जाए तो भी कभी कुछ बहुत क्रिटिकल डिटेल्स याद रह जाती हैं. मल्टीपल क्रोमैटोग्राफी, which one? बेटा इनकी RF वैल्यू कितनी थी? 0.3, 0.6 and 0.9. Easily distinguishable, है ना? But there are certain amino acid pairs, even triplets also, जिनकी RF वैल्यू जानते हैं कितनी कितनी होती है?
0.91, 0.89, 0.61, 0.59, 58, and a triplet I think in that is cysteine with 0.55. So they are appreciably close. They are appreciably close. So what to do in this thing? What to do in this thing? A multi-development. The chromatogram is repeatedly developed, not just once. हम chromatography बेटा बार बार रन करेंगे, chromatogram पे बार बार रन करेंगे. In same direction, and thus the complete resolution of two or more substances which have RF value close together can be obtained. जब बेटा एक जिनकी बहुत पास पास RF value होते, so we run chromatography multiple times, so that even if their RF value is close enough, there is a slight distinction or separation between them, which can be identified or detected. Okay? ये देखो बेटा, अगर आपने ये देखा हो तो कितना आसान है ना यहाँ पे स्पॉट्स आइडेंटिफाई करना. पता चल रहा है ये वाला है, दिस वन इज डेफिनेटली प्रोलीन, येलो प्रोलीन ही देता है. सोचो ये कि क्या होगी इनकी आरएफ वैल्यू, कितने डिस्टेंस पे स्पॉट आ रहा है बेटा. ये जब ट्रेल करता है तो और भी दिक्कत होती है, तो हम बार बार रन करते हैं. वी रन इट मल्टीपल टाइम्स, सो देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन. See, first the sample is applied like this. This one is the mobile phase na, and this is your sample application line. This is your sample application line. यहाँ पे आपने एक स्पॉट लगाया सेपरेशन के लिए, सेपरेशन हो गया, उसके बाद इसी को ऐसे कर दिया हमने यहाँ पे. Like first one, we did chromatography like this vertically, and then in the same chamber we just did it horizontally. Okay? ताकि एक एक्सिस पे बेटा सेपरेशन ऐसे हो और एक पे ऐसे हो, so that it can be separated in x axis also, in y axis also. ठीक है? बाकी फिजिक्स तो यार आप लोग जानते हो मेरे से ज्यादा, फिर वो आगे कैलकुलेट तो कर ही लोगे, है ना? इजी ना? क्रोमेटोग्राफी. लास्ट वन इज कॉलमनार क्रोमेटोग्राफी, CC. इसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या था बेटा? द स्टेशनरी फेज. द स्टेशनरी फेज इज पैक्ड इन ग्लास कॉलम्स, प्लास्टिक कॉलम्स और एनीथिंग एल्स जिसमें भी पैक हो सकता है, उसमें पैक किया जाता है सर. This includes chromatographic methods in which the stationary phase is packed into a column. The mobile phase is moving liquid or gas. जितने भी हाई एंड लेबोरेटरीज होती हैं बेटा, उनमें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत होती है. द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस इज कॉल्ड HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, which is used in the estimation of HbA1c. Okay? According to mechanism of separation of solutes, 5 major types of CCs are distinguished. Usually one mechanism predominates but does not exclude others. This is just a basic setup for your representation, just to look easy. ले अच्छे से ले, आराम से देख, आराम से देख. Stationary phase is held in narrow tube through which mobile phase is forced under pressure or under effect of gravity. Normally क्या होता था बेटा? TLC और PC में. Are you okay बेटा? पानी दे आपको. TLC और CC में क्या, TLC और PC में क्या होता था बेटा? डिप करते थे तो मोबाइल फेज ऊपर आता था, which is against gravity. That's why the process was slower. This was one of the major drawbacks. Here in columnar chromatography, what is happening? It is descending down, and we are also applying pressure. तो process और तेज होगा. Types of CC याद रह जाए, well and good. खाली नाम भी. Open column chromatography, traditional column chromatography, इसको दूसरा नाम होता.
characterized by addition of mobile phase under atmospheric pressure and the stationary phase is packed in a glass column. एक glass column में हम stationary phase pack कर देते हैं. It can be anything, silica, glass beads, anything depending on what we are separating, and the mobile phase is applied above. Okay. Then packing and operating the column. The selection of the method of packing depends mainly on the density of the solid. Technique used are wet, dry and slurry methods. In all cases avoid inclusion of air bubbles. जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बायोकेमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन ही चलता बेटा, एब्जॉर्प्शन नहीं चलता. वैसे ही मेडिकल फील्ड में एयर बबल्स आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं. अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट. ओके, इसका मतलब समझ आया बेटा? ऊपर जो लिखा व्हाट इज रिटन अबव, क्या मतलब है इसका? बेटा 1 किलो रुई ज्यादा जगह लेती है या 1 किलो लोहा? रुई ज्यादा जगह लेती है ना, इट हैज लेस डेंसिटी. सो इफ वी पैक अ हाईली डेंस स्टेशनरी फेज इन द ग्लास कॉलम तो वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा. सो मोर द डेंसिटी मोर वुड बी द एफिशिएंसी, क्योंकि उसकी पैकिंग भी ज्यादा होगी बेटा उसमें. Sample application. Now how the sample is applied? Once the column is packed with stationary phase, how the sample is applied? Apply evenly in a concentrated solution to the top of the column which is protected from disturbance. Example, glass wool or filter paper. Why you should avoid disturbance? Let us once again take the example of this thing. ये इतना डिप्ड है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट ऊपर ही उसका सैंपल अप्लाई हो रहा है, जस्ट ऊपर ही. तो अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, आप जाके उसके चेम्बर पे ऐसे हल्का सा पुश कर देंगे तो ये थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा. हो सकता है ये ऊपर यहाँ तक स्पिल कर जाए, एंड द होल रिजल्ट इज फिनिश्ड. बहुत निगरानी में रखना पड़ता है बेटा. ओके, डिटेक्शन. रन हो गई क्रोमेटोग्राफी. अब बेटा इसे डिटेक्ट कैसे करना है? ऑन कॉलम डिटेक्शन फॉर कलर्ड और फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स. क्या होते हैं बेटा फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स? व्हाट आर फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स? 2 दिन से पूछ रहा हूं, आप लोग जाके वापस डिस्कस नहीं करते हो क्या? आपके बहुत रूममेट रहे होंगे जो यहाँ पढ़ के गए होंगे, एंड आई हैव आस्क्ड ईच एंड एवरीवन दैट व्हाट आर फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स. किसी ने नहीं बताया. What are fluorescent compounds beta? There are 2 types of property in the matter na. One is fluorescence and one is phosphorescence, and it is utilized in lab. It is not utilized, it is exploited. FIA होती है ना बेटा आजकल, थायराइड और बाकी सारे जितने हिमेटोलॉजिकल और ये सब एस्टिमेशन होता है सीरोलॉजिकल, दे आर यूटिलाइजिंग FIA, फ्लोरो इम्यूनो एसे. पहले तो बेटा केमिल्यूमिनेसेंट होता था, बहुत एडवांस आ गया. पढ़ो बेटा फ्लोरो इम्यूनो क्या होता है, व्हाट इज फ्लोरोसेंस, इट इज बेस्ड ऑन दैट. Monitoring of the eluted fraction, PC or TLC, okay, using special detectors connected to columns such as refractive index or UV detector. आसान भाषा में कहें तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? एक बार CC कंप्लीट हो गई, UV डिटेक्टर्स. What should be your answer? What should be your answer? UV डिटेक्टर्स. पूरा CC रन हो गया एक बार, तो डिटेक्ट कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे हमने क्या डाला था बेटा TLC में और उसमें PC में, नेन हाइड्रेट फॉर अमाइनो एसिड्स. यहां पे आप करेंगे यूवी डिटेक्टर्स. बात खत्म. लिख लो इसे. इसके एडजॉर्बेंट्स देख लो. क्या अटेंडेंस टू ऑल है, तुझा चिंता मत कर. एडजॉर्बेंट्स, एडजॉर्बेंट्स देखो बेटा. द मोस्ट कॉमन आर एल्यूमिना, सिलिका जेल in which interaction with molecular solute due to OH group present on their surface. आज एडिटर का काम बहुत बढ़ गया, क्या करें यार. एक तो वैसी the strength of adsorption of polar groups on polar support is in the following orders. This group is methylene, then methoxy, ester, keto, aldehyde, ammonia, hydroxy and
कार्बोक्सिल। एप्लीकेशन इन सेपरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब देखो बेटा सीसी की एप्लीकेशन क्या होती है। वी आर जस्ट कमिंग टू अ क्लोज, क्विकली से रैप अप करते हैं, जल्दी आओ। एल्यूमिना, एल्यूमिना पे बेटा क्या होगा? स्टेरॉल्स, डाइस्टर्स, विटामिन्स, एस्टर, एल्कलॉइड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी का मान लीजिए कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन का एस्टिमेशन है, तो बेटा वो एस्टिमेशन तो तब होगा ना जब वो दोनों चीजें सेपरेट होंगी, तभी तो होगा। तो स्टेरॉल द बेस्ट एग्जांपल कि कॉर्टिसोन कितना है, तब वो फ्रैक्शन से अलग होगा बेटा, तभी तो एस्टिमेशन के लिए जाएगा। देन डाइस्टफ्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेटा जितना होता है B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12, इनका एस्टिमेशन तो तभी होगा ना बेटा जब बी कॉम्प्लेक्स से अलग अलग होंगे। किसी को मान लो B9 की डेफिशिएंसी है, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कितना कम है वो देखना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले उसे सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट किससे होंगे? क्रोमेटोग्राफी से, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। एस्टर्स, एल्कलॉइड्स बताया था मैंने, ड्रग अब्यूजर्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Silica gel is once again used for sterols and amino acids. Carbon is used for peptides, carbohydrates and amino acids. Calcium carbonate, carotenoids and xanthophylls. Partition column chromatography छोड़ो इसे। हाँ, GPC, gel permeation chromatography. Gel permeation chromatography. This is also known as साइज एक्सक्लूजन, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन, मॉलिक्यूलर सीव, जेल फिल्ट्रेशन और जेल क्रोमेटोग्राफी। कोई एक नाम याद कर लीजिए, मोर देन इनफ। कोई एक डन। अरे साथ तो नहीं लिखने, कोई एक याद है बस, वो बहुत है। स्टेशनरी फेज क्या है बेटा इसमें? पोरस पॉलीमेरिक मैट्रिक्स। स्पंज देखा आपने? स्पंज इसमें एक स्पंजी मटेरियल होता है बेटा, बट दैट इज नॉट आवर स्टेशनरी फेज। दैट इज नॉट आवर स्टेशनरी फेज। उस स्पंजी मटेरियल के पोर्स में बेटा हमारा स्टेशनरी फेज एडजॉर्ब्ड होता है। ओके, द पोर साइज वेरीज विद द डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग। जैसे इलेक्ट्रोफोरोसिस में होता है ना बेटा 1% और 3% सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कम है, क्रॉस लिंकिंग कम है, पोर साइज ज्यादा है। सिमिलरली यही होता है यहाँ पर। फिगर अच्छा है ये। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज इज अ लिक्विड एज वाटर और डाइल्यूट एल्कोहल। वाटर और डाइल्यूट एल्कोहल। देन सेपरेशन मैकेनिज्म बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट। अभी तक अलग अलग फोर्सेस थी, लाइक फोर्सेस ऑफ एडजॉर्प्शन, डिसॉल्वेशन, कि किसमें कौन कितना डिसॉल्व हो रहा है। नाउ we are using molecular weight. Then molecules will distribute themselves outside and inside the pores according to their size. Larger are excluded, medium size enter halfway and the smallest permeate all the way. Okay? लिख लो बेटा इसे। समझने की कोई जरूरत नहीं, you just have to remember the formula. Because at MBBS level it has no practical application. और अगर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है एज ऑफ नाउ, तो उस पर ज़्यादा एफर्ट डालने की आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं है। सेटअप होता तो और बात थी, सेटअप करके उसमें प्रेजेंट करते तो ज़्यादा बेटर रहता। एप्लीकेशन ऑफ जीपीसी टू नेचुरल प्रोडक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेप्टाइड्स। कैसे डिटरमाइन होगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट? लेट अस सपोज पोर साइज इतना है कि इट कैन ओनली अलाउ पार्टिकल्स अप टू 100 डाल्टन्स। ओके, तो उससे जो भी बेटा मॉलिक्यूल्स पास होंगे, देयर मॉलिक्यूलर वेट वुड बी लेस देन 100 डाल्टन्स एंड द लार्जर मॉलिक्यूल्स विल स्टे बिहाइंड। Desalting of colloids, example desalting of albumin prepared with 2% ammonium sulfate. पहले क्या होता था बेटा, एक्सपेरिमेंट्स होते थे जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी आइडेंटिफिकेशन होता था. हम आपको एक प्रोटीन का सैंपल देते थे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना होता था कि दैट व्हाट प्रोटीन इज दिस, इज इट एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन, कौन सा प्रोटीन है. अब वो सिलेबस से हट गए हैं. तो उसमें एक प्रोसेस होता था बेटा डिसाल्टिंग या साल्टिंग आउट. अगर आप लोगों ने सुना हो तो एल्बुमिन को ग्लोबुलिन से अलग किया जाता है उसमें, इस प्रोसेस से.
ठीक है, तो उसके रेफरेंस में बात लिखी हुई है. Then separation of mixture of mono and polysaccharide, amino acids from peptides and proteins, proteins of different molecular weights, mucopolysaccharides and soluble RNA. What is soluble RNA? What is soluble RNA? tRNA. Yes, very good. tRNA. Separation of myoglobin and hemoglobin. Why separation of myoglobin and hemoglobin is clinically important? In which cases it can be? In which cases it can be important? कोई क्रश इंजरी है, आरटीए का केस है बेटा, तो आप ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें सबसे पहले अलग ही तो करेंगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन फ्रैक्शन को, तभी तो एस्टिमेट होगा. Then ion exchange chromatography. How many of you have studied zeolites in your class 11th? Zeolites. Anyone? Zeolites. Hard and soft water बेटा होता है ना. फिर रहने दो, फिर इसका फायदा नहीं है बेटा. If you are not well aware with zeolites, तो this is not of much issue. It was just used as a reference in this PPT. Just write down the applications. Okay, application of ion exchange chromatography. It is based on resins जो ions exchange करते हैं. Okay, like hydrogen would be replaced with some other cation, hydroxyl group would be replaced with some other anion. Okay, it is based on this principle only. The first application is water softening, water demineralization, neutralization. What is water softening? What is soft water? दो बैचेस ने डिसअपॉइंट किया मुझे, सॉफ्ट वाटर नहीं पता. व्हाट इज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर? सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स नहीं होते, तो हार्ड वाटर उसमें क्या फर्क होता है? वही तो पूछ रहा हूं मैं. Sulfates of calcium and magnesium. Hard water consists of sulfates of calcium and magnesium. Yes, very good. Yes, this is the exact definition. सॉफ्ट वाटर में नहीं होते, हार्ड वाटर में होते हैं. The sulfate and phosphate of calcium, magnesium, even iron also. Iron is also included in that. Whereas in soft water, these are usually absent or lesser ions are present. Then water demineralization. What is the clinical application of that? Water demineralization. If your lab utilities are running on mineralized water, mineral water, सीधा बिस्लेरी डाल दो उसमें, तो क्या होगा? जो आपकी FPG बेटा 90 आ रही होगी, वो सीधा 390 आएगी. Okay, so demineralization is very important in clinical laboratories for correct interpretation of data. Then neutralization. Let us suppose your blood pH is 7.4, so you have to maintain that 7.4. Okay? For carrying out certain experiments in vitro, in vivo, okay? आपको वो pH चाहिए, तो मान लीजिए जो सैंपल आ रहा है उसकी pH 10 है, आपको उसे इंजेक्ट करना है, तो पहले आपको उसे 7.4 पे लाना पड़ेगा ना. Separation of electrolytes from non-electrolytes, separation of carbohydrates and their derivatives, and this ends. चलो.